सिरात मुस्तकीम का राही, आले सुन्नत का सिपाही, अबू बकर उस्मान का फिदाई, दरी अली की करे गदाई, दरे अली की करे गदाई, कुरान से देता है आगाही, कुरान से देता है आगाही, खून नबी असहाब का दाई। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब पाकिस्तान, मुफस्सिर कुरान, कादरे कलाम, पीर सैयद सुहना माही साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ लाते हैं, हमें अपने मलबूजा से नवाजते हैं। बेटा सादा कर इजाजत है, स्पीकर सादा करे बिल्कुल हाई स्कूल। जो नेक बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें जनाब। छोटे बच्चे खड़े हो जाएं, जो नेक बच्चे हैं जल्दी से खड़े हो जाएं, जो अच्छे बच्चे हैं जल्दी से ये बैठे, साहबजादे हैं वो बैठे। अच्छा बेटा खड़े हो जाए, शाबाश। आप लोग पीछे चले जाएं और बुजुर्गों को आगे जाओ, शाबाश। उठ जाओ ना, अच्छे बच्चे बात मानते, आप लोग पीछे चले जाओ, शाबाश। बेटा आप भी पीछे चले जाओ, इन बच्चों को उठाओ यार, बात मानते हैं, आप पीछे चले जाओ। नहीं, बात नहीं बनने वाली। अच्छा चलो जैसा भी है, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, नज़दीक हो जाओ, नज़दीक हो जाओ, आगे आगे आ जाओ और आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ, पीछे वाले भी आगे आगे आ जाओ। याद है मुझे कि आज से काफ़ी अरसा पहले इस आस्ताना पाक के इसी उर्स पाक पर हाज़री हुई है पहले, और मुझे वो आयत भी याद है सूरह बकरा से, जो आयत मैंने तिलावत की थी वो 256 नंबर आयत थी। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व यु'मिन बिल्लाह। और गुफ्तगू मैंने इस बात की थी, फ़क़द इस्तमसका
اللہ پاک حضرت کو صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرمائے. سب دوست آمین کہا کریں. نہیں آمین نہیں آپ نے کہا, سب ایک آواز سے آمین کہا. اور خیبر پور شریف سے جو شہزادگان تشریف لائے, اللہ پاک ان کو بھی عمر خضر عطا فرمائے. اور یہ جو سلسلہ طریقت کا فیضان یہ سارا خاندان تقسیم کر رہا ہے, اللہ پاک اس کا فیض صبح و قیامت تک جاری و ساری فرمائے. بہرحال آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ نمل کو کھولا ہے. سورہ نمل قرآن حکیم کا 27 نمبر سورہ ہے, اور میں جس آیت کو تلاوت کر رہا ہوں یہ اس سورہ سے 87 نمبر آیت ہے. میری مجبوری ہے, ساتھ ہی مجھے 99 نمبر آیت بھی پڑھنا ہوگی, ساتھ ہی مجھے 90 نمبر آیت بھی پڑھنا ہوگی. اور حسب استطاعت علم بافیضان خواجگان میں کوشش کروں گا کہ جب میں ممبر چھوڑ کے یہاں سے اجازت لے کر جاؤں تو یہ آیتیں آپ کے سینے میں اس طرح اتر چکی ہوں کہ قرآن کے ان لفظوں کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ ہو چکا ہو. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہمتن گوش ہیں. وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم میں آیت تلاوت شروع کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. وا کا معنی ہے اور, یوم کا معنی ہے دن, ینفخو کا معنی ہے پھونکا جائے گا, فی الصوری کا معنی ہے سور. اللہ فرماتا ہے میرے بندو جس دن سور پھونکا جائے گا, میرے بندو جس دن قیامت برپا ہوگی سور پھونکا جائے گا, فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. من فی السماواتی کا معنی ہے آسمان میں جو کوئی بھی ہے, چاہے وہ فرشتے ہیں, چاہے وہ غلما ہیں یا ملائکہ مقربین ہیں, من فی السماواتی کے دائرے میں آتے ہیں. اگلے الفاظ ہیں من فی الارض, معنی ہے زمین میں جو کوئی بھی ہے, چاہے وہ جن ہیں, چاہے وہ انسان ہیں, چاہے وہ حرکت کرنے والی کوئی بھی چیز ہے. اللہ فرماتا ہے فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے جس دن قیامت آئے گی. اب اس کا معنی ہے کہ کائنات پوری, ساری کائنات والے گھبرائیں گے. آگے ہے اللہ دیکھیں, آگے ہے اللہ, نہیں بیٹا ایسے نہیں, آگے ہے اللہ. عربی گرامر کا اصول ہے کہ جملے کے درمیان میں جب بھی اللہ آئے وہ استثناء کا کام کرتا ہے. استثناء کا معنی ہوتا ہے جو بات آگے آتی ہے وہ پچھلی بات کو الٹ دیتی ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ, مجھ اللہ کو عصر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں. اب یہاں تمام انسان گنے گئے لیکن فوراً فرمایا اللہ,
फौरन फरमाया इल्ला, ताकि बंदों को समझ आ जाए कि सब नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नजदीक घाटा नहीं आएगा। वो कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू, मोमिन घाटे से बच गए। आपने देखा है कि पहली बात को उल्टा गया, इल्ला के बाद वाली बात ने पहली बात को उलट दिया। मेरा ख्याल है मेरी कम इल्मी और नालायकी की वजह से बात आप तक नहीं पहुंची। फिर अर्ज करता हूँ, अल्फाज हैं ला इलाहा, माना है कोई लायके इबादत नहीं है। अब ये तो कलमा कुफरिया है कि किसी की इबादत जायज ही नहीं। आगे है इल्ला, आगे है इल्लल्लाह, माना है कोई नहीं है पर अल्लाह तो है ना। आपने देखा कि लफ्ज़ इल्ला ने क्या किया है? जो बात आगे आई है उसने पिछली को उलट दिया है। वमा अर्सलनाका, हमने तो आपको भेजा ही नहीं। अब ये तो जुमला नफी का है कि हमने आपको नहीं भेजा। अगर यहाँ रुक जाएं तो माना होगा नबी को अल्लाह ने तो नहीं भेजा, लेकिन फरमाया इल्ला, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमी ने आपको कायनात की रहमत के लिए भेजा है। आपने देखा कि इल्ला आप अगली बात आगे पिछली को उलट करती है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, हमने तो बंदे नहीं बनाए। अब अगर कोई बंदा यहाँ रुक जाए तो बंदा कह सकता है अल्लाह तो खालिक नहीं, हमने तो जिन नहीं बनाए। लेकिन फौरन फरमाया इल्ला, किसी और ने नहीं बनाए हैं, हम ही ने बनाए हैं। लियाबुदून, ताकि सारे हमारी इबादत करें। आपने देखा कि इल्ला क्या करता है? अगली बात पिछली को, जल्दी बोले, अगली बात पिछली को उलटती है। अब दोबारा कुरान को सुने, अल्लाह फरमाता है वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द, कायनात घबराएगी इल्ला, आप बड़ा ठंडा बोले हैं इल्ला। इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन पर कयामत का असर नहीं होगा, वो घबराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। इधर कयामत आ गई है, जमाना घबरा रहा है, वो मुस्कुरा रहे हैं। आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर आगे पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह वो कौन है? फरमाए इल्ला मन शाअ अल्लाह, वो हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है। नहीं, सारी कायनात अल्लाह की आशिक है, कायनात अल्लाह को चाहती है। अल्लाह फरमाए मेरे चाहने वाले घबरा रहे होंगे, जिन्हें मैं चाहता हूं वो मुस्कुरा रहे हैं, जिन्हें मैं चाहता हूं वो मुस्कुरा रहे हैं। कयामत की दहशत का असर उन पर नहीं, वो बड़े लुत्फ में हैं। अच्छा परवरदिगार, तो फिर फरमाया बंदे घबराने वाले हैं या मुस्कुराने वाले हैं। वकुल्लुन आतौहु दाखिरीन, सब के सब मेरी कचहरी में आने वाले हैं। आपका मजा नहीं आया, मैं फिर आगे चलता हूँ। कोई बात नहीं, वक्त थोड़ा है, जल्दी आगे चलना है। परवरदिगार, कायनात तुझे चाहती है। तूने कहा कुछ बंदे हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ और वो मेरे महबूब हैं। वो कौन है? अल्लाह फरमाते मन जाआ बिल हसनती,
یہ وہ بندے ہیں جبکہ میری کچہری میں، میری بارگاہ میں ان کی آمد ہوگی تو ان کے دامن میں ایک ایسی نیکی ہوگی، ایک نیکی، صرف ایک نیکی۔ مالک کو کیسی نیکی ہوگی؟ فرماتا ہے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کروں گا، فوراً انہیں جنت دوں گا۔ غضب ہو گیا آپ کی خاموشی پر، نہیں ایسے نہ، مجبوراً نہیں لگائے، دوبارہ آیت کو سنیں، آیت کو دوبارہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنتی، وہ جو میرے محبوب ہیں جنہیں میں چاہتا ہوں، جب وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کے پاس ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی، فقط ایک نیکی۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کروں گا، انہیں فوراً جنت دوں گا اس ایک نیکی پر۔ ایک نیکی پر جنت کا فیصلہ کر دوں گا، اور اس کا نام اللہ نے حسنہ رکھا۔ حسنہ کیا نام رکھا؟ اور فرمایا ایک نیکی۔ اچھا پروردگار پھر اور فرمایا وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کی گھبراہٹ سے امان مل جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایک نیکی ہے جس پر میں نے جنت کا فیصلہ کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بابا جی مجھے آگے پڑھنے دیں، میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تو پھر اب مجھے آپ اجازت دیں تو میں اگلی آیت پڑھوں، نہیں اس طرح نہ کریں، مل کے سبحان اللہ۔ اب اللہ فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اگر تمہارے پاس وہ ایک نیکی نہ ہوئی، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، میں فوراً منہ کے بل تمہیں جہنم میں پھینک کر ملائکہ سے کہوں گا بڑا بدبخت ہے، ایک ہی تو نیکی کہی تھی وہ بھی نہیں لا سکا، ایک نیکی کہی تھی وہ بھی نہیں لا سکا، ایک نیکی۔ دیکھیں یہ پیر خانہ ہے، خانقاہ ہے، اور یہ تربیت گاہ ہے۔ میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں، آیت کا ریفرنس دینے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جاؤ اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو، جا کے اپنی اولاد کو نماز کا آرڈر کرو، اپنی بیوی کو نماز کا آرڈر کرو، اپنی ماں باپ کو نماز کا آرڈر کرو، اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف آرڈر نہیں کرنا، خود بھی نماز پڑھو۔ لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نے تم سے روزی کا سوال تو نہیں کیا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اگر تو اپنی فیملی کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو جائے، رزق میں برکت کا وعدہ بھی ہم کر دیتے ہیں۔ نماز ایک نیکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کا چاند نکل آئے تو کوئی مومن ایسا نہ ہو جو روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ روزہ ایک نیکی ہے۔ خذ من اموالہم صدقات، میرا حبیب مالدار غلاموں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ ایک نیکی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس دولت موجود ہے وہ میرے گھر میں آئے، حج کرے، اس لیے کہ حج ایک نیکی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ محبت سے بات کرو، بیوی کے ساتھ آہستہ بات کرنا ایک نیکی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
इयाहु व बिल वालिदैनि ihsana, अपनी माँ की खिदमत करो, ये एक नेकी है। अपने वालिद से प्यार करो, ये एक नेकी है। परवरदिगार, सारा दीन तो नेकियों से बड़ा है। अल्लाह फरमाता है सारी नेकियां एक तरफ हैं, लेकिन अगर ये एक नेकी ना हुई ना, ये एक नेकी ना हुई ना, तो ये सारी नेकियां भी तुम लेकर आ गए तो मैं तुम्हें जन्नत नहीं दूंगा। लेकिन अगर ये एक नेकी तुम ले आए ना, तो नमाजों के सजदों में टूटे हुए भी हुए तो मैं कबूल कर लूंगा। नहीं, मुझे नहीं समझाना आ रहा। मैं सूरह अल-कहफ पढ़ता हूँ, ये 18 नंबर सूरा है, और मैं 103 नंबर आयत पढ़ता हूँ, 104, 5, 6, 7, 8, 109 नंबर आयत पढ़ता हूँ, 110 नंबर आयत पढ़ता हूँ। अब 110 के जाके सूरह ही खत्म हो गई है, आप चुप बैठे हुए हैं। अब मैं 111 नंबर आयत पास से तो नहीं ना पढ़ सकता। आपको चाहिए तो आप सुभान अल्लाह कह देते, क्योंकि यहाँ पे तो सूरह खत्म हो गई है। 103 नंबर आयत को तवज्जो से सुने। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमला। कुल, इरशाद फरमाओ, हल क्या, नून हम, नब्बिउ खबर दें, कुम तुम्हें, हबीब उम्मत से पूछो, अगर ये कहें तो इन्हें बता दें। मैं अर्ज करता हूँ सूरह फातिहा हमसे पूछ के भेजी, सूरह नास हमारे मशवरे से भेज रहा है, सारा कुरान अपनी मर्जी से भेज रहा है। आज आयत भेजने से पहले हमें क्यों पूछता है? अगर कहो तो तुम्हें बता दिया जाए। अल्लाह फरमाता है सारी सूरतें तुम ले चुके हो, लेकिन यहाँ आके बड़े बड़ों के पेट में दर्द शुरू होना है, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर मत्थे पे वट नहीं आता तो तुम्हें बताएं बात। परवरदिगार, वो कौन सी ऐसी बात है? फरमाया बिल अक्सरीना अमला, अंबार पहाड़ों के बराबर। यहाँ तफसीर नहीं है, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को पढ़े, अभी कंदुल ईमान उठा ले, नीचे लिखा है पहाड़ों के बराबर अमलों के अमाल का अंबार बंदे लेकर आए हैं, और अल्लाह की कचहरी में अंबार लग गया, नमाजों का, रोजों का, हज और ज़कातों के अंबार है, और पहाड़ों के बराबर है। परवरदिगार, तो फिर मालिक फरमाते हैं अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ये समझते हैं कि हमने बड़े अच्छे काम किए, बड़ी नेकियां कर ली, हमने नेकियों का अंबार ही लगा दिया है। मालिक तो फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही फहबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। क़यामत वाले दिन मैं मलाइका से कहूँगा इनके नमाजों को तोलना नहीं, इनके रोजे तोलने नहीं, मीज़ान से पीछे करो ये गंदी नमाज़ें, मुर्दार अमाल। मेरा अल्लाह का मीज़ान गंदा हो रहा है, पीछे करो इनके अमलों को। और फहाबितत अमालुहुम, नमाजें जला कर राख करो इनकी, इनके सामने रोजे जला दो, हज जलाओ इनके। उलाइका जज़ाअहुम जहन्नमु, और ये सारे अमलों वाले जहन्नुम में फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह इतने नेक बंदों के साथ भी कोई ऐसा सलूक करता है, अल्लाह की आवाज आती है मलाइका खामोश, बड़ी नेकियां करते मर गए पर जन्नत वाली नेकी नहीं लेकर आ सके। आप ठंडा बोले हैं यार, मेरा हबीब ये जन्नत वाली नेकी नहीं ला सके। जिस नेकी पर मैंने जन्नत का फैसला करना है वो नेकी नहीं इनके पास। अल्लाह वो कितनी नेकियां हैं? फरमाया वो तो एक नेकी है, वो तो एक नेकी है। जो बैठे हो यार की तो अमानत रखे किसी देखे नहीं, मुझे नहीं मजा आया। मैं फिर अर्ज करता हूँ, मैं सूरह मुल्क पढ़ता हूँ, 67 नंबर सूरा है, और मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम। मुझे शेर नहीं आते,
मुझे वाकयात भी नहीं पढ़ने आते, आपका सोना बनता है, आप वैसे भी थके लग रहे हैं और आपका भी सोना बनता है, इसलिए कि मैं एक बोर आदमी हूं। मुझे तो आप नहीं पता चलता कि मुझे कैसे याद कर लेते हैं सारे दोस्त, वरना मेरे जैसा बोर तो दुनिया में कोई नहीं। मैं दोबारा आयत पढ़ता हूं, अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लज़ी वो मैं अल्लाह हूं, खलक़ा पैदा किया, मौता मौत को, वल हयाता और जिंदगी को, वो मैं अल्लाह हूं जिसने मौत और जिंदगी को बनाया, लियब्लुवकुम, इसलिए बनाया है कि तुम्हारा इम्तिहान चाहता हूं, कि तुम्हारा इम्तिहान लूं। अल्लाह वो इम्तिहान क्या है? फरमाया अय्युकुम, मैंने देखना है वो कौन है तुम में से कि जब मेरे पास आए तो अय्युकुम अहसनु अमला, उसके पास अमलों का अंबार हो या ना हो, वो एक अमल जरूर लेकर आना जिसके लिए मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूं। वो एक अमल जरूर लाना। वो देखिए, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसरी इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू में वाओ और अलिफ जमा की अलामत है। एक अमल की बात नहीं होती कुरान में, कुरान अमलों का मजमुआ है, सारे अमल लाजमी हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने इसी आयत को पढ़ के कहा अमल से जिंदगी बनती है। अल्लामा इकबाल ने कहा अमल से जिंदगी बनती है। अमल से कोई किबला हाजी साहब पढ़ा लिखा मौलवी अल्लामा इकबाल के पास होता तो कहता कलंदर पाक लिखो अमलों से जिंदगी बनती है। अल्लामा इकबाल कुरान के मुफस्सिर थे और बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उनकी नजर उस एक नेकी पर थी, हाय बोलो जिसे समझ आ रही है, उनकी नजर उस एक नेकी पर थी। अगर वो ना हुई तो इतनी बड़ी नेकियां, नीचे लिखे पहाड़ों के बराबर नेकियां तो जला दी गई। और अगर वो एक नेकी, फकत एक नेकी, देखें मैं सूरह फुरकान पढ़ना चाहता हूं, ये 25वां सूरा है, मैं 70 नंबर आयत देना चाहता हूं। मेरे सामने 70 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाते हैं ला मन ताबा व आमना व आमिला, आमिला व आमिला। मैं बिला वजह नहीं रुकता यारा, कोई वजह है। व आमिला व आमिला अमलन सालिहन। साहबजादे देखें, अल्लाह फरमाता है एक अच्छा काम करे, एक अच्छे काम नहीं, एक अच्छा काम करे मालिक तो क्या होगा? फरमाया एक अच्छा काम ले आए, युबद्दिलुल्लाह, एक अच्छा काम, एक अच्छा काम, फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनाती। मलाइका आके कहेंगे ये बड़ा गुनाहगार है, उसकी किताबे जिंदगी मेरे सामने खुल जाएगी, सारी गुनाहों से भरी है। अब मैं फरिश्तों पे नहीं छोड़ूंगा, अपने कुदरत के हाथों से उसके हर गुनाह को मिटाकर उसे नेकी में बदल दूंगा, उसके हर गुनाह को मिटाकर उसे नेकी में बदलूंगा। अल्लाह पाक ये क्या हो रहा है? मालिक फरमाता है मलाइका ये बड़ा गुनाहगार है, लेकिन इसकी किताबे जिंदगी में वो एक नेकी लेकर आ गया है जिस पर मैंने जन्नत देनी है। आप जाग रहे हैं? आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। वाह मैं कैसे आगे चलूं? अल्लाह फरमाता है मेरे जमाना जिस दिन सूर फूंका जाएगा, सारी कायनात घबराएगी, मेरे महबूब मुस्कुराएंगे। और वो सिर्फ मुस्कुराएंगे नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं होगी सूर के फूंके जाने पर। और सुनो, वो जब मेरे पास आएंगे तो उनके पास एक ऐसी नेकी होगी मैं फौरन जन्नत दूंगा। और वो घबराने वाले, सारी जिंदगी अमलों के अंबार लेकर आने वाले जब मेरी कचहरी में आएंगे,
وہ ملائکہ کو اپنی ڈال دیں گی. تولو, جلدی کرو, تولو, ہمارے عمل تولو, ہمارے عمل تولو, ہمارے عملوں کو جلدی سے تولو. اللہ فرماتا ہے فرشتوں جلا دو سارے عمل, میرے میزان کے قریب نہ لانا, اور پکڑو سارے نمازی جہنم میں پھینک دو. اگر پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں, آواز آتی ہے نیکیاں کرتے مر گئے ہیں, ایک نیکی نہیں لا سکے جس پر میں نے جنت کا فیصلہ کیا. تو پروردگار پھر فرمایا ادھر سے گناہگار آ رہا ہے اور اس کی ساری کتاب زندگی گناہ سے بھری ہوئی ہے, میں اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہوں, اس لیے کہ وہ ایک ایسا اچھا کام لے کر آیا جس کی بنیاد پر میں نے جنت دینی ہے. مالک یہ کیا ہو رہا ہے تیری کچہری میں؟ نمازیوں کو جہنم میں پھینک رہا ہے, گناہگار کو جنت دے رہا ہے. فرمایا بات تو اس ایک نیکی پر مقتدی ہے, باقی رہا یہ بات ہو کیا رہا ہے. اگر میں کسی نمازی کو جہنم میں پھینک رہا ہوں تو یہ میرا معیار عدل پورا ہو رہا ہے, اگر میں کسی گناہگار کو جنت دیتا ہوں یہ میرا معیار فضل پورا ہو رہا ہے. اب مجھے اجازت دے, میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک نیکی کیا ہے, کیسے پڑھوں گا؟ وہ ایک نیکی کیا ہے؟ آپ سنی ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ کے گھر قرآن تو ہے, تلاش کرو وہ کون سی نیکی ہے, وہ کون سی نیکی ہے جو ایک نیکی پر جنت کا فیصلہ ہے. 18 تفسیریں میں نے اس ایک آیت پر پڑھی ہیں اور دیکھے میں نے 18 مفسرین کو, وہ نیکی کون سی ہے جو ایک نیکی ہے. لیکن جب قرآن کو کھولا تو قرآن کی سمجھ قرآن میں سے آئی تو قرآن خود اپنی تفسیر کو یوں بیان کرتا ہے, اگر تم اس ایک نیکی تک آنا چاہتے ہو تو سورہ عاشورہ کو کھولو, یہ 42 نمبر سورہ ہے, اور صرف 23 نمبر آیت کو پڑھ لو. ویسے تو 5 آیتیں ہیں لیکن ایک پر پڑھ لو, ایک بھی کہاں میں آپ کے درمیان پوری پڑھ پاؤں گا. اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نہیں, آپ نہیں بولے, میں واپس جاؤں گا, میں واپس جاؤں گا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نہیں مزہ آیا؟ میں پھر پڑھوں گا, میں آپ کو تکلیف دوں گا, میں نہیں آگے چل سکتا. میں اس ایک نیکی کا ترجمہ قرآن کا قرآن سے لینے کی کوشش کر رہا ہوں. بیٹا مجھے دیکھو نا, آگے بیٹھ کر کدھر دیکھ رہے ہو؟ ذالک الذی یبشر. صاحب دادا صاحب مولوی شیعوں کا ہو, دیوبندیوں کا ہو, اہل حدیثوں کا ہو, کوئی بھی عالم ہو, جب بھی نماز کی جماعت کراتا ہے تو سلام پھیرتا ہے, اور سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہوئے ایک آیت پڑھتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ مجھے وہ ایک نیکی چاہیے. نہیں مزہ آیا؟ پھر کہنا چاہتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, حسنات نہیں, حسنہ. اللہ مجھے زندگی میں وہ ایک نیکی دے دے, ایک نیکی دے دے. دے دے کیا مطلب ہے؟ اٹھو, اٹھ کے کر لو. نیکیاں تو کرنے سے ملتی ہیں. اللہ فرمایا وہ نیکیاں سارے قرآن میں جو ہے وہ تمہارے کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہ ایک نیکی اللہ کے کرم سے ملتی ہے. یہ ایک نیکی اللہ کے کرم سے ملتی ہے. اور قبلہ حاجی صاحب اللہ فرماتے ہیں وہ مولوی کہے گا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ. اللہ بات صرف زندگی کی نہیں, میری قبر میں نور تب ہوگا جب وہاں بھی وہ ایک نیکی مل جائے. ایک نیکی اگر مل گئی تو میری زندگی بھی سنورے گی, قبر بھی سونی ہو جائے گی. اب مجھے اجازت دے میں قرآن سے تلاش کر کے آپ کو بتاؤں وہ ایک نیکی کون سی ہے جسے سارے مانگ رہے ہیں, جسے دنیا کا ہر عالم نماز کے بعد مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک الذی
युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसमें सुभान अल्लाह को मैं आगे पढ़ूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसना व मन यक्तरिफ हसना। कोई इनकार करेगा मैं सारी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा। मन यक्तरिफ हसना, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, अली का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, हुसैन का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। नहीं, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, आले मोहम्मद का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। आले मोहम्मद का जिक्र खुशखबरी है। नबी की आल का जिक्र कुरान में खुशखबरी है। बंदों को समझना चाहिए अल्लाह ने फैसला कर दिया जिसके घर में कुरान मौजूद है जब वो अली का नाम सुने तो खुश हो जाए, क्योंकि अली का जिक्र अल्लाह ने खुशखबरी कहा है। अल्लाह ने अली का जिक्र खुशखबरी कहा है। आज अगर कोई नाराज है तो उसका कसूर नहीं जो अली के जिक्र पर नाराज हो जाए, इसलिए कि खुशखबरी जितनी बड़ी मर्जी क्यों ना हो, बंदा खुश थोड़ी होता है अगर देने वाले पर शक हो जाए। आपका MNA MP अगर झूठा है, फ्रॉडिया है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर वो कहे कि कल मोटरवे का इंटरचेंज इसी गांव से निकाल देंगे तो इतनी बड़ी खुशखबरी पर आप खुश नहीं होंगे, बल्कि गर्दन नीची करके कहेंगे बकवास करता है, भौंकने की आदत है, ऐसी झूठा है। अब पता चला है आपको, अगर खुशखबरी देने वाला अगर सच्चा ना हो, उस पर शक हो, तो बंदे खुश नहीं होते। आले मोहम्मद का जिक्र खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। नहीं मैं समझा सका, फिर से कहना चाहता हूं, बंदा नेक है, शरीफ है, वजीर है, हाजी है, मोटरवे का इंटरचेंज भी निकल आएगा। गुजरावाला में हाफिज शहबाज साहब के साथ मैं खुश हो जाऊंगा कि अब अगर इस आस्थाने पर आना होगा तो यहीं आके उतर जाएंगे। लेकिन जिनकी जमीनें दरमियान में आ गई, कोठियां बंगले दरमियान में सड़क पर आ गए, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। अब जिसका बेड़ा गर्क हो जाए वो खुश कैसे हो जाए? अब जिसका बेड़ा ही गर्क हो जाए वो खुश कैसे हो जाए? कुरान का जोर लग गया कि अली के जिक्र पर खुश हो जाओ। अब जो खुश नहीं है, या तो वो अल्लाह पर शक करते हैं या आले मोहम्मद से उनका कोई नुकसान हो गया है। जिसका कोई नुकसान नहीं है वो सुभान अल्लाह का उबैद कर गया। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, अली का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। नहीं मैं पढ़ सकता आगे, जो अल्लाह देता है, जो अल्लाह देता है। इबादहू 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 इबादहू, अल्लाह फरमाता है ये आले नबी की खुशखबरी मैं अपने बंदों को देता हूं। अपने इबाद बंदे, हू मेरे अपने। अल्लाह फरमाता है आले नबी का जिक्र मैं गैरों से नहीं करता, अपनों से। मुबारक हो अल्लाह तुम्हें अपना कह रहे हैं। अल्लाह हम गुनाहगार है, फरमाया मेरे अपने हो। अल्लाह हम नालायक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अल्लाह हम नालायक है, फरमाया मेरे अपने हो। अल्लाह हमें अपना कह रहा है, फरमाया हाँ जो अली के जिक्र पर खुश हो जाए वो मेरा अपना है। ये माइक बंद करो, ये माइक बंद करो। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, आले मोहम्मद का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह अपने अपने अपने
हजारों तमन्नाएं होती हैं दिल में हमारी। बस शायर के सामने शायरी करूंगा, बिस्त हो जाऊंगा। नहीं, मैंने नहीं शेर पढ़ना। किबला मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया, स्पेशल एमए उर्दू लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। मैंने इसीलिए किया था कि शायरी आ जाएगी। मेरी डिग्री आई है, शायरी नहीं आई मुझे। मैंने सोचा शेर मेरे वाला काम नहीं है, मैं हाथ ना ही पावा तो बेहतर है। हजारों तमन्नाएं होती हैं दिल में हमारी, तो बस एक तमन्ना यही है, मुझे एक दफा अपना कह के पुकारो। बस और दिल में कोई भी हसरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो आले नबी के जिक्र पर खुश है वो मेरा अपना है। आले मोहम्मद के जिक्र पर जो खुश है वो मेरा अपना है। इबादहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता है ये जिक्र मैंने आमनू से किया है। ये जिक्र हुसैन का जिक्र, हुसैन का जिक्र सूरह आशूरा की 42वां सूरा की 23 नंबर आयत में जिक्र है आले नबी का। ऐसा लिखा है आपकी कुरान में। अल्लाह फरमाता है आमनू से जिक्र करूंगा। आमनू मेरे अपने हैं और आमनू से जिक्र है। ये खानका है, खानकाह पे आने वाला हर बंदा मेहमान होता है। मेहमानों का दिल नहीं तोड़ते, इसलिए हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। हमारे अगर कोई शिया भाई हैं तो वो कहते हैं मोमिनों की मजलिस है, यानी वो समझते हैं कि आमनू हम हैं। अगर हमारे कोई देवबंदी भाई बैठे हैं तो वो समझते हैं कि आमनू हम हैं। अगर हमारे अहले हदीस भाई जो कि हमें मुशरिक समझते हैं, कहते हैं सब मुशरिक हैं, आमनू हम हैं। मेरे भाइयों, आमनू कुरान का लफ्ज है। ये जब भी कुरान में आया है अलिफ मीम नून वाओ और अलिफ 5 से बनता है। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह। आमनू की शर्त है 5 की नौकरी। जुमला ठंडा हो गया, फिर कहता हूं आमनू 5 से बनता है। अलिफ पर खड़ी जबर है, मीम पर जबर है, नून पर पेश है, वाव पर जज़म है, 5वें अलिफ पर कुछ नहीं है। ना ज़ेर है, ना जबर है, ना शद है, ना मद है, ना जज़म है। लिखने में आगे है, पढ़ने में नहीं आ रहा। पता चला लिखने में 5 आए, पढ़ने में 4 आए। पता चला जहां 5 आए वहीं 4 आए, जहां 4 आए वहीं 5 आए। 5 और 4 को जिसने दिल में इकट्ठा रखा अल्लाह भी उसे अपना कहता। क्यों? जिसे समझ आ गई है बात। देखिए, आमनू बनने के लिए पहली शर्त अलिफ होता है। पहले अलिफ को मानो, पहले अलिफ को मानो। आमनू के लिए पहली शर्त अलिफ की है, पहले अलिफ को मानो। आमनू के लिए पहली शर्त आप टाइम जाया करते हैं, आप बहुत वक्त जाया कर रहे हैं। जल्दी से बात करो ताकि किसी मंजिल तक बात पहुंच सके। आमनू के लिए पहली शर्त अलिफ है, पहले अलिफ को मानना है। बस आपको समझ आ गई है तो मैं आगे पढ़ता हूं। अलिफ के फौरन बाद आमनू में मीम आता है। पता चला आमनू के लिए पहले अल्लाह को मानो, फिर मुस्तफा को मानो। बाद में नून ने बताया सारे नबियों को मानो। बाद में वाओ ने बताया कि अब अल्लाह के वलियों को मानो, अब अपने मुर्शिद को मानो, अब अपने अल्लाह वालों को। वली आ गए। अब अगला अलिफ क्या कर रहा है? फरमाया वली तक आओ, वली तुम्हें अल्लाह से मिलाएगा। ताकि जमाने को समझ आ जाए अल्लाह ने आले मोहम्मद का जिक्र अपने उन बंदों से किया है जिनके दिल में 5 तन पाक की नौकरी है, 4 यारों का हया भी है और वो सारे नबियों के नौकर हैं, मुस्तफा के आशिक हैं, अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह वालों की नौकरी करते हैं। फरीद
عید کی شکر بھی کھاتے ہیں، گوشت کی یارویں بھی پکاتے ہیں، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے جو ان کو مان لے اب علی علی کرے میرا اپنا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اللہ آل محمد کی خوشخبری اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو مومن ہیں۔ ترجمہ غلط ہوا، زبان کٹوا کے تلی پہ رکھ کے لے جاؤں گا، بات غلط ہوئی تو زبان کٹوا کے تلی پہ رکھ کے لے کر جاؤں گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ فرماتا ہے یہ ذکر نمازیوں سے ہوگا، یہ ذکر نمازیوں سے ہوگا، نیک اعمال جو کرتے ہیں، صالح عمل جو رکھتے ہیں۔ اوے جس کی آنکھ میں حیا نہیں اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، جسے نماز کی عزت نہیں اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ پاک گھر کا ذکر ہے، اللہ پاک ہے، منبر پاک ہے، اب اسے بیان کرنے کے لیے قبلہ بھی پاک ہونے چاہیے، سننے والے بھی چرسی نہیں نمازی ہونے چاہیے۔ اچھا قبلہ درمیان میں ایک لفظ آگے ہے، آگے کل، کیا لفظ ہے؟ سارے بولو، مانا کرو۔ محبوب اللہ عمر دراز کرے، آپ سید دے، آپ کو سلامتی عطا فرمائے، کم از کم قرآن کی اتنی معرفت سامعین میں ہوگی تو میری بات آپ تک پہنچے گی۔ درمیان میں اللہ بولا حبیب جی، اللہ جی یہ جو بات میں نے شروع کی ہے نا تھوڑی سی میں نے کر دی ہے، آگے آپ شروع کر دو۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا اپنی بیٹی کا ذکر کرو، اپنے حسین کی بات کرو، اپنے علی کی بات کرو۔ تو پروردگار تو کر رہے نا، تو ساری کر دے، ہمیں یقین ہے تیرے اوپر، تو درمیان میں نبی کو نہ ڈال، ساری بات آپ کر۔ اللہ فرماتا ہے نہیں میرے بندو، یہ آل محمد کا ذکر ہے، آدھا میں کروں گا آدھا نبی کرے گا۔ نہیں اللہ اگر تیری مرضی ہے کہ نبی سے کروانا ہے تو درمیان میں سے کل کو اٹھا، آیت کے شروع پہ لگا، ساری نبی سے کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں میرے بندو، یہ علی کا ذکر ہے، آدھا میں کروں گا آدھا نبی کرے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اللہ، یا تو کر یا نبی کرے، یہ کیسی بات ہے جو تو آدھی کرتا ہے، آدھی نبی سے کرواتا ہے، آدھی تو آپ کرتا ہے، آدھی نبی سے کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر میں نے ساری نبی پر چھوڑ دی نا تو پاکستان کے مولویوں نے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنا ہے نبی کا اپنا تھا نا بس اس کی کرتے رہے نا، اپنا تھا نا اس کی۔ یہ علی کا ذکر ہے، آدھی خدا کرے گا آدھی مصطفیٰ کرے گا، تاکہ قیامت تک قرآن کھولنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ آل محمد کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں ہوتا، سنت مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور سنت خدا بھی ہوتا ہے۔ بات کرو میں آگے پڑھنا شروع۔ اب علی علی کون کریں گے؟ نبی بولے سارے، اب علی علی کون کریں گے؟ نہیں بولے سارے، اب علی علی کون کریں گے؟ نہیں مزہ آیا آپ کا یاد؟ اب علی علی کون کریں گے؟ اور کون کروائے گا؟ اللہ۔ تو اللہ سے نبی نے پوچھا جب تو ہی کروا رہا ہے تو تو خود ہی بتا دے میں کہاں سے شروع کر لوں؟ اللہ نے فرمایا حبیب مجھے پتا ہے ما ینطق عن الہوا، تیری زبان میری وحی کے بغیر چلتی نہیں، تو چل میں ہی تجھے بتا دیتا ہوں کہ پہلا جملہ کہہ دے لا اسألکم۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں اسألو سوال کرتا،
कुम, तुमसे, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। या रसूल अल्लाह, आप अली का जिक्र शुरू कर रहे हो, मैं अल्लाह आपसे कहता हूं पहला जुमला कहो। ओए मैं मोहम्मद हूं, कोई सवाल ही तो नहीं। जाया कर दिया यार, आपने जाया कर दिया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मैं फिर कह देता हूं, मैं मोहम्मद हूं, कोई मांगने वाला तो नहीं। जाया कर दिया तुमने जुमला, मैं फिर कहना चाहता हूं। अल्लाह फरमाए हबीब इनसे कहो मैं मुस्तफा हूं, कोई सवाली तो नहीं। मैं फिर पढ़ता हूं, यारा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज मेरे सर पे पहनाया गया है। इन्ना आतैना कल कौसर का खजाना मेरे हाथों में थमाया गया है। यमसूना अलल अर्द की नालैन को मेरे ज़ेबे कदमैन फरमाया गया है। वल फजर मेरी पेशानी को फरमाया गया है। वल शम्स मेरे चेहरे की कसम उठाई गई है। वल लैल मेरी जुल्फों को लहराया गया है। अलम नशरा मेरे सीनों को फरमाया गया है। यासीन मेरे दंदान को फरमा के अल्लाह ने कहा व अम्मा शाइला फला तनहर, अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो खाली ना जाने देना। मांगने वालों को मेरा दरवाजा दिखाकर अल्लाह ने कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, हबीब अता पर अता, 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 अता पर अता। ऐलान कर मैं बांटने वाला हूं, मांगने वाला नहीं हूं। मैं फला व रब्बिका, मुझे मेरी कसम, फला व रब्बिका, मुझे मेरी कसम, फला व रब्बिका, आप टाइम ज़ाया करते हैं, मुझे मेरी कसम, फला व रब्बिका, अल्लाह कहता है मुझे मेरी कसम, ला युमिनून हत्ता युहकिमूक, ये मोमिन नहीं अगर आपको हाकिम ना माने। हाकिमों का काम मांगना नहीं होता। तो आप देखें, लेकिन फरमाया इल्ला, साहब ज्यादा सब अब इल्ला आगे। अब इल्ला का माना है मांगो, पहली बात को उलट करना है। हबीब मांगो। अल्लाह तू तो कह रहा था कि आप मांगने वाले नहीं, अब तू कहते है मांगो। नबी आप नहीं मांग रहे, मैं मंगवा रहा हूं। हाय हाय, नबी आप नहीं मांग रहे, मैं मंगवा रहा हूं। मैं मांग रहा हूं, मैं कहता हूं मुझे पानी दे। अगर कोई नहीं पानी दे रहा तो मेरी इंसल्ट है, पानी मैंने मांगा है। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अगर कोई नहीं मांग रहा तो ये तू नहीं मांग रहा, मैं मंगवा रहा हूं ताकि जमाने को समझ आ जाए इस मसले में मसला मुस्तफा की इज्जत का नहीं बल्कि खुदा की इज्जत का मसला हो रहा है। आपको समझ आ रही है? अच्छा, नमाज नहीं मंगवाई, नमाज का ऑर्डर दिया, रोजे का ऑर्डर दिया, हज का ऑर्डर दिया, इतने जहां ऑर्डर दिए थे एक ऑर्डर और कर लेते। फरमाया नहीं, इसका ऑर्डर नहीं करना, ये नमाज नहीं है, ये रूहे नमाज है। इसका ऑर्डर नहीं करना, यहां तो नमाजी मर जाएंगे सारे अगर उनके पास ये ना हुआ तो। ये रूहे नमाज, इसका ऑर्डर नहीं करना, इसे मांगना है। हबीब इसे मांगना है, हबीब इसे मांगना है। मेरा महबूब इसका ऑर्डर नहीं करना, इसे मांगना है। मैं अल्लाह जानता हूं, मैंने बंदे पैदा किए हैं, मुझे इनकी साइकोलॉजी का पता है। ये बड़े बड़े मुतकब्बर कानटूटे किस्म के लोग ऑर्डर से तंग आ जाते हैं, लेकिन जब तेरी जैसी जात मांग रही होगी तो बड़ा बेशर्म भी होगा तो गर्दन नीचे करके कहेगा मानो है मोहम्मद हो के मांग रहे हैं। आपको समझ आ रही है? आपको क्या समझ आ रही है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फिल कुर्बा, फिल कुर्बा, अल माउ फीही, ये मुझे जग दे, अल माउ फीही, बस दे दें, ऐसे दे दें, अल माउ फीही, पानी जग के फी है, बीच है, अंदर है। जब तक ये फी रहेगा पी सकता हूं,
जब तक ये फी रहेगा बर्तन धो सकता हूं, जब तक ये फी रहेगा कपड़ा धुल जाएगा, जब तक ये फी है काम का है। जब ये फी ना रहा, अब उलमा से पूछो किसी काम का नहीं रहा। अल्लाह फरमाता है हबीब इनसे कहो जब तक तुम अली की मवद्दत फी रहोगे, जब तक मेरी औलाद का हया करोगे, काम के रहोगे, काम के रहोगे, अली को छोड़ गए किसी काम के नहीं रहोगे। आपको समझ आ रही है? देखिए मैं आयत बयान नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अब समझता हूं मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने अगर आयत को खोलना शुरू किया तो बात बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन अब गुफ्तगू खत्म हो गई। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। देखें एक उसूल है तजारत का कि जितनी कम माल हो कीमत बराबर होती है। अगर मुझे गिलास खरीदना है तो उतनी कीमत दूंगा जितने का गिलास है, कीमत माल के बराबर होती है। या रसूल अल्लाह आपने हमें क्या दिया? फरमाया नमाज। अब अल्लाह हमें बदले से क्या लेना चाहता है? फरमाया हुसैन की प्यार मोहब्बत। या रसूल अल्लाह अल्लाह हमें मनवाना क्या चाहता है? फरमाया ज़माने वालों अल्लाह मनवा रहा है मेरी औलाद की प्यार को नमाज से कम ना समझना। जुमला ज़ाया हो गया, फिर कहना चाहता हूं मेरी औलाद के प्यार को नमाज से कम ना समझना। जुमला ज़ाया हो गया, वक्त थोड़ा है, मैं किसी मंजिल तक जाना चाहता हूं। मेरी औलाद के प्यार को अल्लाह पाक नमाज के बराबर है। फरमाया ना, नमाज की जरूरत नहीं, आले मोहम्मद की मोहब्बत की बराबरी कर जाए, इसलिए कि नमाज तो अपनी कबूलियत के लिए इनके दुरूद की मोहताज नजर आ रही। भाई जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो। मैं हाँ, तो अब बात खत्म हो गई। चलो ये अब आयत आपके साथ उधार हो गई। आयत को नहीं छेड़ा हाजी साहब, मैंने आयत नहीं पढ़ सका मैं। अब अल्लाह करीब इरशाद फरमाता है वमई यक्तरिफ हसना, वो जेड़ी तुसी एक नेकी लभदे सुना पे वो आई है। रुकना रुकना रुकना, जल्दी ना करना। वयौमा युनफखु फिस्सूरी, कयामत जिस दिन आएगी सूर फूंका जाएगा। फफज़िया मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी, सारी कायनात घबराएगी। इल्ला मन शा अल्लाह, मगर मेरे महबूब मुस्कुराएंगे। मन जाआ बिल हसाना, इसलिए कि जब वो मेरे पास आएंगे उनके पास आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी। फलाहु खैरुम मिनहा, मैं देर नहीं करूंगा, फौरन जन्नत दूंगा। वहुम मिन फदाई यौमा इज़िन आमिनून, यही वो आले मोहम्मद के हकदार हैं जिन्हें कयामत की घबराहट नहीं आएगी। आए जिसे समझ आ गई, चुप कैसे बैठा हुआ है? नमाजी आएंगे, रोजेदार आएंगे, हाजी आएंगे, बड़े बड़े अमलों के अंबार लेकर आएंगे। अमाल जला के रख दूंगा, मौलवियों के जहन्नुम में फेंकूंगा। फरिश्ते कहेंगे कसूर क्या है? ऐलान करूंगा नमाजें पढ़ते रहे हैं, अली से प्यार नहीं करते रहे। गुनाहों के अंबार लेकर आने वाले मेरी कचहरी में आएंगे, उनके गुनाहों को नेकियों में बदल कर कहूंगा ले जाओ जन्नत में, अली का हकदार आ रहा है। हाजी साहब मैं यख्तरिफ हसना नज़िद लहू, नून हम जिद ज्यादा करेंगे, लहू उसे। अल्लाह फरमाता है इतना सा प्यार अली का ले आ, मैं उसे इतना कर दूंगा। मुझे टाइम बताएं, टाइम क्या है? छोड़ना मिंबर छोड़। आपने क्या वक्त खत्म हो, वक्त खत्म हो गया ना? अच्छा फिर रहने दें। नहीं नहीं अब वक्त हो खत्म हो, नहीं मैं एक भी लफ्ज़ पढ़ूं तो मुझे शाम हो जाएगी, आप यकीन। किबला नज़िद लहू फीहा हुस्ना, अल्लाह कहता है टूटी फूटी अली की मोहब्बत ले आ, मैं उसे हसीन कर लूंगा।
देखिए मैं हदीस भी नहीं पढ़ूंगा, आपकी नात सुनते हैं, हदीस भी नहीं पढ़ता, छोड़ दिया मैंने बात। वशकुरूली, तुम मेरा शुक्र करो, तुम मेरा शुक्र करो, तुम मेरा शुक्र करो। व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरा ऐलान है जो मेरा शुक्र करेगा मैं उसे ज्यादा दूंगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, जो मेरा शुक्र करेगा मैं जहन्नम बुझा दूंगा। ठंडा बोले हो यार। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा व लम यकू मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही, मुस्तफा का दादा इब्राहीम हर कदम पर मेरा ही शुक्र करता रहा। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा व क़ाल रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। दाऊद का बेटा सुलेमान भी मेरा शुक्र करता रहा। या मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन नासि बिरिसालती व बिकलामी फख़ुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन, मेरे मूसा भी मेरा ही शुक्र करते रहे। अब अल्लाह फरमाता है वमन यक़्तरिफ़ हसना, ये एक नेकी ले आओ, हुसैन का प्यार, इतनी सी ले आओ ज्यादा कर लूंगा, टूटी ले आओ खूबसूरत कर लूंगा। आयत के आखिरी अल्फाज इन्नल्लाह गफूर शकूर, शक ना करो, जमाना मेरा शुक्र करता है, अली के हुब्बदार का मैं अल्लाह शुक्रिया अदा करूँ। हाय अल्लाह उसका शुक्रिया, शुक्रिया अल्लाह उसका शुक्रिया, अल्लाह उसका शुक्रिया, अल्लाह उसका शुक्रिया अदा। इन्नल्लाह गफूर, और शक ना करना उसके गुनाह भी माफ करूंगा। तू तो कह रहा था मैं नेकों की तो गुंजाइश नहीं थी इस महफिल में, तूने तो आमिलुस सालिहात के बाद बात शुरू की है, नेकों से बात शुरू की, ये एंड पे गुनाहगार कहां से रले हैं इस महफिल में। अल्लाह फरमाता है चुप करो, ये घर सिर्फ पाक होता तो फकत बात पाकों से होती, चूंकि ये घर करीम भी है। ठंडा बोले नहीं मजा आया, फिर से कहना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है सारी जिंदगी का गुनाहगार भी अगर होर बन के इनके दरवाजे पे आ जाए, उसके गुनाह नहीं तकते, जन्नत दे देते। अच्छा तो अल्लाह फिर तू गुनाहगारों से बात कर रहा है? फरमाया हाँ मैं गुनाहगारों से कहता हूं मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह तू, हम बंदे हो के गुनाहगारों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, तू अल्लाह हो के गुनाहगारों का शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह फरमाता है खामोश, गुनाहगार है आले मोहम्मद का, गद्दार तो नहीं है। पता चला अल्लाह की कचहरी में गुनाहगार चल सकता है, फातिमा का गद्दार नहीं चला करता। आओ आओ खोलो जी को आइस खोलो जी। सिर्फ दो अशआर सरकार रहमतपुरी रहमतुल्लाह अलैह जी, सिर्फ दो अशआर और उस तो बाद मेरी हाज़िरी मुकम्मल। एक मिनट बाद दुरूद पाक पढ़ो जरा। सलाम वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। बुलंद आवाज़ में जरा सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हजूर शाह जी बड़ा पसंद करते हैं कलाम सरकारां दा। तेरी मैं तेरी हज़रत, तेरी मैं तेरी हज़रत, मैनो बहार तेरी, मेरा तबीब तू है सोने, मेरा तबीब तू है, मैं हाँ बीमार तेरी, मेरा तबीब तू है।
रोजे शुमार मेरे रख ले तो लाज मौला, रोजे शुमार मेरी। हज़रात ज़िकार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अल याकूब साउंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिलें और आप देखकर हमारे लिए दुआ करते रहें। शुक्रिया।